अच्छा ठीक है. So in the last class, what we discussed A star algorithm. Okay. So we are discussing about the A star, and we can try to find out the solution. Okay, and then we can discuss A star is a optimal and complete. Sit down. Okay. So anyone doubt regarding how A star will be searched? Doubt? Offline? No doubt. Okay. So today we are going to discuss about one terminology like admissible. Okay, admissible. So when we can say that A star is admissible, when we can say that A star is not admissible. Okay. Now see, these are important point. If you want to become an AI engineer, then they will interested to ask what is the admissible. Okay. So in the previous class, we are discussing about the different type of graph like this one. And then we can perform your search operation like A, B, C, D, E, F, and G is given like that one. And suppose A heuristic value is 8, 2, 3. Okay. So this one is a 1, 5, 6, 7, 0. And the path cost of given like a 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 4, and 1. And G is our goal state. Okay, this one is our goal state. So if you apply the A star, then we can search basically what we apply the A star. We can go for the f of n equal to g of n plus h of n, where g of n is the path cost from node to the goal state, and h of n is a heuristic function that is called the estimate function. Okay, so suppose we can apply A star on this given graph, so we can only find out the goal where our goal is present. We are not talking about this given graph is the admissible or optimal like that one. No. Suppose I can find out the solution that you can say that this graph is a complete and optimal. But when we are graph is given, then we can discuss about one sub part admissible. If this really gives optimal solution or not. हमारा मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हम सर्च कर रहे हैं, ओके, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा गोल स्टेट पे पहुंच गया तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया. हमें ये भी चेक करना है कि भाई जो शॉर्टेस्ट पाथ है क्या उससे भी कम हो सकता है, या जो हमारा ये जो डेटा दिया हुआ है वो सही है या गलत है. तो इस चीज को चेक करने के लिए वी कैन यूज द एडमिसिबल कंडीशन. ओके, एडमिसिबल. So in admission conditions, we can follow the one equation: h of n is less than equal to h star n. Okay, now what is the h of n? So as it is, h of n is the same as the estimate cost. Okay, so what is the estimate cost? अगर मैं पूछूं कि अगर मुझे गोल स्टेट तक पहुंचना है तो एस्टिमेट कॉस्ट क्या हो सकता है. अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पे पहुंच गया डी के पास, सो डी की एस्टिमेट कॉस्ट क्या होगी? आई एम टॉकिंग अबाउट एच ऑफ एन. एनीवन कैन आंसर? अगर आपको ए स्टार एल्गोरिथम समझ में आ गया हो तो ये एस्टिमेट कॉस्ट को भी आप आंसर कर सकते हो. या ऑनलाइन एनीवन कैन एक्सप्लेन कि व्हाट इज द estimate cost if I can reach the D without solving f of n, g of n like that one? 5 एग्जैक्ट. सो इसका मतलब ये हुआ, सही, थैंक यू. देखो कि अगर हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, सपोज हम ई के पास हैं, चेंज कलर, ई के पास है, तो मतलब हमारा गोल स्टेट तक पहुंचने का मिनिमम जो कॉस्ट है वो 6 है. हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं, मैं पाथ कॉस्ट का बात ही कर रहा हूँ कि 1 2 जैसे ए टू बी गए, बी टू सी गए, सी टू ई गए, इसका हम बात नहीं कर रहे हैं. हमने बात किया कि भाई जब मैं ई के पास खड़ा हूँ तो हमारे पास एस्टिमेट कॉस्ट कितना होगा? 6. ओके, दैट मींस इतना कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा. इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट कॉस्ट. Okay, and now this one h star is the actual cost. So what is the actual cost? Suppose I can travel from A to Z, then total cost, that means the path cost, that is called the actual cost. Suppose I can follow the path A to B
B to C, C to D, and D to G. So A to B will be 2 plus B to C is a 1, C to D is a 2, and D to G is a 1. So how much cost? 2 plus 1, 3 plus 5 plus 6. So this is the H star. H star. That is the actual cost. So any A star algorithm is admissible if this estimate cost is always less than equal to the result. Okay. So now see, अब देखते हैं कि ये मेरा ग्राफ एडमिसेबल है कि नहीं. सपोज हमने एक्चुअल कॉस्ट निकाला इस पाथ के थ्रू. सपोज हमने बात किया कि ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू जी ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है. सपोज मैंने माना और हमारा एक्चुअल कॉस्ट क्या आया? 6 आया. अब देखो क्या इससे सब लेस देन है? ए ओके, बी नॉट ओके. मतलब ये ग्राफ हमारा एडमिसेबल कभी नहीं हो सकता क्योंकि ईच एंड एवरी नोड एच वैल्यू इज लेस देन द ग्रेटर देन द दिस वन. बट हियर यहाँ पर क्या है? सॉरी ये बड़ा है, सॉरी ओके है, 3 भी ओके है, डी भी ओके है, ये भी ओके है, लेकिन ई के पास क्या एस्टिमेट कॉस्ट 7 है. ओके तो हमेशा क्या होगा? ये जो एच ऑफ एन है वो छोटा होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा गारंटी से ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे सकता है. तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग बोलते हैं एडमिसिबल कॉस्ट. ओके सो टेक वन एग्जांपल. सपोज हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है. आप ये बताना सॉल्व करके एस है, फिर हमारे पास वी हैव टेक वन ए, देन वी कैन गो फॉर जी गोल. दिस वन आवर गोल स्टेट. So I can change the color of this goal state. I can put as a Z. Okay. Then here we can start from the B and then again reach to the goal. Okay. So S to B is a given, I can suppose 200. This is also 200. And A to Z is given like 40. And this one is given like a 50. And this 40 and 50 is as at the actual cost. That means this is a H star is given. Now H star is given. Okay. So suppose I can give the heuristic of H of A and H of B. अब देखो, suppose हमने H of A, मुझे क्या करना है? एडमिसेबल करना है. ओके तो एडमिसेबल करने का आप ये इक्वेशन जो देख रहे हो, H of n should be less than equal to H of a star. So H of a star is how much given? 40 and 50. ये है आपका H of a star. ये और ये है 40 and 50. So हमने दिया H of a star. So अगर मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, if I can satisfy the equation of admissible, then H star, sorry, H of n should be 40 or like a 50, 60, 70, 80, 90, 100 होगा ना? Yes या no? Sorry. ऑनलाइन एनी डाउट? यही प्रॉब्लम होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में. ओके थैंक यू. नाउ सी देन सपोज व्हाट वैल्यू आई कैन टेक फॉर द दिस कंडीशन सेटिस्फाई. सो आई कैन टेक H of n. दिस डोंट टॉक. H of n should be 40 or greater than. So it suppose I can take H of n is a 50. So I can take H of A is a 50 and H of B more than 50. So I can take a 60 for the satisfying this case H of n. Okay. अब आप देखो यहाँ पर क्या है? H of n should be greater than H of a star. So H of n हमारा क्या है? सॉरी H of A क्या हमारा 50 should be greater than less than 40 है ना? H of A जो हमने लिया क्या लिया? 50 और H of A star क्या है? 40 है ना? कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो मैंने इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए अब इस पे सर्च एल्गोरिथम लगाते हैं A स्टार. यस डाउट है तो पूछिए. ओके 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 सॉरी मिस्टेक. सो सॉरी ये पता नहीं चला.
सॉरी, थैंक यू। सो हमने लिखा ए, सॉरी, h of a equal to 50 and h of b equal to 60. So here, so what is the h of a? Suppose I can take this one is a less than, so it should be take a less than. So suppose I can take 30 and this will be taken as a 20. So now 30 is less than and equal to 40 and 20 is less than equal to 40. Now it's, sorry, 50. Now it's clear, na? Okay, clear. So I can take h of a is a 30 less than of h star and h of b is a 20 less than 50. Now it's clear. So out I can apply A star algorithm. So A will be search first for the A, then go for the B. Okay, A and B. So what will be the function cost of A and B? What will be the function cost of A and B? So I can calculate function cost of of A equal to G of A plus H of A. So what will be the G of A? 200 plus H of A. What is the H of A? 30. So it's become 230. Similarly, I can calculate F of B. Please don't talk now. Like H of B. So what will be the value? 200 plus H of B is equal to 20, like a 220. So node A gives the estimate cost 230. Now see, the estimate cost node A is a give a 230. Now it gives a 220. So I can choose S to B. Then I can go for the goal state Z. So goal state, what is the this value? 40. Yes or no? 40 na? So again calculating f of z. So f of z is equal to h of g plus g of g. So what is the value of h of g? 0. And what is the value of g of g? Two 200, sorry, 200 plus 40 na, 240 na, 240 na. Oh, sorry, huh? I can take A. Okay, 250. Is it clear? Sorry. So now check. अब देखो यहाँ पर. So you can get here 250. Please don't talk. You can take 250 here. Okay. Now here 220. Now this is the admissible. This value estimate cost is less than the actual cost. That means the greater than. So we can satisfy the condition h of n less than equal to h of star. So what is the h of n? Like a 220, but h star is a 240. So that is the admissible. हाँ बोलो. Yes. Doubt? समझ में आया? क्लियर हुआ? एडमिसिबल कंडीशन क्लियर हुआ? ऑनलाइन इट्स क्लियर? हेलो, क्या हुआ? ओके, नहीं ऑफ इधर ऑफलाइन कोई डाउट? क्लियर? एडमिसिबल कंडीशन क्लियर हो गया ना? अब देखो, इसी एडमिसिबल कंडीशन वी कैन कॉल्ड एज अ अंडर एस्टिमेट. अंडर एस्टिमेट वी कैन कॉल्ड. So the different name of admissal is the underestimate. Okay, underestimate and overestimate. Okay, so same name for the admissible is the underestimate. Underestimate. Okay, underestimate we call admissible. Okay, so basically sometimes they will ask you the given graph is a underestimate or not. So we have to follow this one. H of n should be less than equal to h of star. इधर बेटा बेटा यहाँ.
what use of it. Okay, Sagar, so we can use to find out if the admissible condition कि the graph is always give the optimal solution. Okay, A star. So that's why you check the condition this given graph is admissible or not. Okay, clear? So same process apply for the overestimate. Overestimate. So can you same process you can solve and check the given graph is a overestimate or not. Suppose I can check a same graph. Now see this one goal state. This one I can go for this one and this one. So again 200, 200, and this one is given a 40. This one is a given as a 50. So this is called H star and this is also H star. And for the overestimate condition is given like h of n should be greater, sorry, not equal, should be greater than h of star. That means estimate cost always greater than actual cost. That is the condition of non-admissible. That is the condition of overestimate. Okay. Can you solve this one? This graph. So you have to take a heuristic function of h of a and you have to take a heuristic function of h of b. Yes. Ha. So you can take a 50 or 60, anything. Then you can solve. Then we see what is the scenario. Please, online student, please solve this question. For overestimate condition, h of n should be greater than h of star of n. That means the estimate cost always greater than actual cost. Okay. So take a heuristic value of h of a and h of b and solve like a previous one question. Girls, please don't talk. आप लोग गैप से बैठो. गैप. Move side, that's it. क्योंकि एग्जाम्स में थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम्स में आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो यू शुड बी प्रैक्टिस. मुझे नहीं पता, अभी तो जो सिनेरियो चल रहा है ऑफलाइन ही जाना चाहिए. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इवन इफ अगर आता है ऑनलाइन भी आता है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना. आप किसी के भरोसे बैठे हो क्या कि कुछ सॉल्व करके ऑनलाइन में भेजेगा तब हम लोग अपलोड करेंगे. No, Sagar, just solve and find out. Okay, okay. S to A to Z. So Sagar, what will we take the heuristic value of h of A and h of B? Okay, correct.
ओके, देखिए आपकी जैसे कॉलेज तो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, दोस्ती बस कॉलेज तक की सही लगती है। आफ्टर जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं ना, आप कितने भी अच्छे दोस्त रहे वो गैप आ जाता है, डू द वर्क। फिर आप में वो दोस्ती नहीं रहेगी, आप यहाँ पे सब कुछ साथ में करते होंगे, लेकिन आफ्टर बीटेक पता नहीं चलेगा। एक टाइम पर जो हम लोग अच्छे दोस्त थे, हमारे फ्रेंड्स थे, आप देखो गैप ही बढ़ गया। तो वर्क प्रोफेशन में आने के बाद सारी दोस्ती घरी की घरी कर जाती है। मैं IIT धनबाद से हूँ। मेरा बीटेक NIT से है, फिर उसके बाद IIT से मैं मास्टर्स हूँ। बीटेक के बाद मैंने 1 साल जॉब किया एज अ जावा डेवलपर, देन मास्टर्स, फिर उसके बाद इधर। कंप्यूटर में किया सर आपने मास्टर? हाँ मास्टर्स हाँ, कंप्यूटर में किया? मेरा थ्रू आउट CSE ही है। जॉब मैं ये MAQ सॉफ्टवेयर हैदराबाद C++ में। हाँ, बीटेक के बाद। उसके बाद मुझे जॉब में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मुझे IT सेक्टर के जॉब बोरिंग लगते हैं। नाउ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग इन गोल्डमैन सैक, अच्छी सी कंपनी में वर्क कर रहे हैं विद द पैकेज ऑफ 20 lakhs 25 lakhs के राउंड है उनकी पैकेज। और अगर आप IIT से MTech करते हो तो मिनिमम पैकेज आपको 12 lakhs का मिलता है मास्टर्स के बाद, तो आपके पास वो भी प्लस पॉइंट है। और आजकल बीटेक से ज़्यादा MTech को वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि मास्टर्स थोड़ा सा अप लेवल हो जाता है। ओके, सो मैटर वो नहीं करता, मैटर करता है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। हाँ एग्जैक्ट, वो तो एज एजुकेशन बैकग्राउंड है हमारा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है लेकिन बहुत अच्छी जगह पर है, लाइक ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल, नो एजुकेशन बैकग्राउंड, रन कर। फिर हमारा फायदा क्या हुआ IIT NIT से पढ़ने का, कोई फायदा नहीं। ओके, सो वो अलग है। सो इसीलिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज लॉट ऑफ है, डिसीजन आपको लेना है कि कहाँ तक आपको लाइफ में, आप कहाँ तक अपने आप को देखते हैं, किस तरह अपने लाइफ को जीना है। ओके, एक नॉर्मल तरीके से लोगों की तरह या कुछ अलग तरीके से, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो चलो, अगर सपोज हमने एक मिनट, सपोज आई कैन टेक h of A equal to 30 and h of B equal to, I can take a 20, then see the scenario. So search will be start from here A, then here B, like a 200 plus 200. So I can calculate f of B here like G of B plus h of B. So G of B is a 200 plus h of B equal to 20. So it gives 220. Now here f of A. So f of A, I can calculate f of A plus G of A plus h of A. So what is the G of A? 200 plus h of A 330. So 230. Now I can get here 230 as estimate cost, and here I can get 220 as estimate cost. So search will be happened from S to B. So I can apply S to B and reach to the goal state G. So I can calculate f of G. Now see here, अब ऐसे नहीं होता, अब आपको यहाँ पे सिनारियो क्लियर होगा। f of G equal to G of G plus h of G. So what is the G of G? 200 plus this one is a 50, 250 plus 0, that means 250. अब देखो यहाँ पे सिनारियो यहीं से चेंज होगा, ये समझने का कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर। नाउ सी, suppose I can reach the goal state through S to B and B to G is a 250, exact, but our algorithm so that there is a one cost available as a 230. So A star will be not stop here, A star will again go for here, then calculate here.
ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया कि हम ओवर एस्टिमेट में ए स्टार का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको गोल तक ही पहुंचना है, गोल तक पहुंचने के लिए वो ये चेक करता है, इसीलिए दैट इज चेक द एडमिसिबल नॉट एडमिसिबल कंडीशन। बाकी सब एल्गोरिथम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अनइन्फॉर्म्ड सर्च देन एस टू बी बी टू जी स्टॉप ना, बट हियर आप देखो 250 again there is a one cost which is the less than 250, so A star go again S A and then explode again, तो ये कंडीशन था। तो अगेन आई कैन कैलकुलेट नाउ, सी हियर G, so what will be the here cost? F of G is equal to 200 plus 40, now look see 240 मिनिमम कॉस्ट ना ऑप्टिमम 250 से भी 240 आ गया ना कॉस्ट आपका। अब समझ में आया व्हाट इज द यूज ऑफ एडमिसिबिलिटी। हमारा एम सिर्फ शॉर्टेस्ट गोल अचीव करना नहीं है। अगर हम एजेंट का बात करें, सपोज यहाँ बेटा कम दैट साइड, सो नाउ सी, अगर हम इस सिनारियो को देखते हैं, इस सिनारियो को सर्च करने के बाद अगर हम टाइप्स ऑफ एजेंट का बात करते हैं तो इट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी? ऑनलाइन स्टूडेंट कैन यू रिप्लाई? सपोज आई कैन सी दैट सिनारियो फॉर दिस वन, देन दिस सपोज आई वांट टू अप्लाई विच एजेंट ऑन दिस वन। टाइप्स ऑफ एजेंट ना, गोल बेस्ड एजेंट, रिफ्लेक्सिव एजेंट, यूटिलिटी एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट। सो ये किस कैटेगरी में लाई करेगा एजेंट्स के? सो ये आपका लाई करेगा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में, गोल बेस्ड एजेंट में लाई नहीं करेगा। क्योंकि अगर गोल बेस्ड एजेंट के हिसाब से सोचे तो हमने तो गोल अचीव कर लिया, लेकिन जब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का बात करेंगे तो वो क्या करता है, सबसे मिनिमम कौन सा है? तो 240। सो इट्स कम्स अंडर द यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ओके, सो if you are thinking about the product based company, then prepare like that type of questions. चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, नहीं तो फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, और वो चीज़ें हाई फाई नहीं पूछती। इवन इफ ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट दे विल ओनली आस्क C and C++, they did not ask Python, Java, nothing. They will only ask the basics questions related to the mathematics. आपको स्टैट्स भी स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोबेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग करना है, अलजेब्रा भी स्ट्रॉन्ग करना है अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आना है तो, कि उन सब सारे कंडीशंस को कैसे यूज़ करें। अगर आपको बेसिकली हम लोग में कैफे कोई कंपनी है ना सिक्योरिटी बेस्ड कर ले, वो बेसिकली आपसे स्टैटिक्स पूछती है, उसके टेस्ट में स्टैटिक्स के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, पाई चार्ट, ग्राफ, फ्लो चार्ट लाइक दिस वन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी बेस्ट पर आपको रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे थ्रू कोडिंग। ओके, बस देखो IITs एंड IITs में प्लेसमेंट लेना इजी क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि हर किसी बंदे को कोडिंग आती है। ओके, जो रियलिटी फैक्ट क्या है, हम लोग वहाँ से पढ़े, कोडिंग सबको नहीं आती। कोडिंग अगर 60 की क्लास है तो ओनली 20 या 10 पीपल कैन नो वेरी वेल इन अ कोडिंग, रेस्ट नॉर्मल रहते हैं। अब क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है जब कंपनी आती है तो जिनका प्लेसमेंट हो गया वही नेक्स्ट जब प्लेसमेंट कंपनी आती है तो वो लोग गाइड करते हैं। विजिलेटर के रूप में वहाँ टीचर्स नहीं होते, वही बच्चे होते हैं। अब तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम्हारे प्लेसमेंट नहीं हुआ तो तुम्हारी जगह मैं आके कोड कर रहा हूँ, तुम्हें मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ये लिखो, इसीलिए अगर मैं प्लेस हुआ तो मेरा फ्रेंड भी प्लेस हुआ, इस तरह सारे लोग प्लेस हुए। ऐसा नहीं है कि सबको 30 मार्क खानी वहाँ पहुँचेंगे। ओके, वो अलग केस है कि आपने टेस्ट क्लियर किया और वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसके अंदर 4 साल भी बहुत कुछ करना होता है। तो सब कुछ के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सब कुछ हर कुछ गेन कर दें। मैक्सिमम 20% लोग बच्चे ही वो कोडिंग स्किल्स को अचीव कर पाते हैं, बाकी सबको प्लेसमेंट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीनियर, विद द हेल्प ऑफ कलीग्स। इस तरह ही होता है। और बेसिकली प्लस पॉइंट और क्या होता है, प्लेसमेंट में हमारे सीनियर्स ही आते हैं। ओके, अगर मान लो कि अमेजॉन आ रही है तो हमारे सीनियर्स ही आएंगे, और जब वो आएंगे तो हॉस्टल में ठहरेंगे और हॉस्टल में रात में ही क्वेश्चन आउट हो जाते हैं। ओके, तो जो बंदा सॉल्व किया उसे मिल गया, जो बंदा सॉल्व नहीं किया उसे नहीं मिला। इंटर्नशिप आती है, इंटर्नशिप के पहले एक रात पहले सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग को मिल जाते हैं कि भाई इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उसी बेसिस पे हमें तैयार करना होता है, फिर उसी बेसिस पे रिप्रेजेंट करना होता है।
तो अगर हम बात करें आउट ऑफ 100 में, तो 70% काम तो उन्होंने कर दिया ना। अरे एक तो सिनारियो तो दिखा दिया कि कैसे पहुंचना है हमें, बाकी 30% आपके ऊपर। ओके, तो रियलिटी ये है। आप ये मत सोचना कि वहां सब कोई 30 मार ही खाना है। ऐसा रहता तो इंडिया सुधर गया रहता है पूरा। ओके, so no Sagar, just we are talking about the general talk. Okay, so doubt is clear. Overestimate and underestimate. Okay, sorry. So I can solve some questions. So try to solve this question. So एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपको ग्राफ थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी एट एनी हाउ। सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, F and G, and the past cost is given like 2, 1, 3, 2, 1, 5, 1, 2, and here h of n is given like, and here the state is given. So for A it will be the 5, for B, C, D, E, F and G, and this one is our goal state, G is our goal state, this will be the start state, and this will be the goal state. So this one is like 2, 1, 4, 6, 2, 5. So we have to find out, apply the A star and find out this given graph is admissible or not. Like the given graph is underestimate or overestimate for achieving the goal. We have to check that. हमारा सिर्फ ऑप्टिमल पाथ आउट फाइंड आउट नहीं करना, फाइंड आउट करना है कि इसमें एडमिसिबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो किस रीजन से। आपको ये फाइंड आउट करना है, अगर नहीं है तो कौन से नोट के कारण नहीं है। ठीक है, अगर ओवर एस्टिमेट है तो कौन से नोट के कारण ओवर एस्टिमेट है। सो दैट इज द क्वेश्चन। Yeah, online clear. So we have to solve this question and find out in which node the given condition is admissible or not, or overestimate or underestimate. Okay, apply A star algorithm. Online, is it clear? Online. Green and blue नहीं दिखाई। 5, 2, 1, 4, 6, 2, 5, and this will be 2, 2, 3, 1, 1, 1, 5, 2. So what is the time complexity of A star? Anyone can tell me? What is the time complexity of A star? Hey, what is the time complexity of A star? And space complexity? अगर मुझे 7th सेमेस्टर को बच्चों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना पड़े फिर तो बहुत बुरा हाल है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट्स द b का पावर d and space complexity same as a b cross d. So b is the branching factor and d is the depth. So we can travel, we can explore each and every branch, then we travel to the depth.
Okay, so we can travel branching the factor, we can storing the node, because we can follow the concept of DFS and BFS. ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो निकल के आई है ना, DFS और BFS से आई है, ना कि ये स्टार की है, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं DFS एंड BFS बोथ इसमें। इसलिए मैंने बोला कि ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। हर चीज ग्राफ थ्योरी पर ही है। आपका फेसबुक, यू नो, यूजिंग द फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, दिस ऑल वर्क ऑन द ग्राफ थ्योरी। कैसे पोस्ट करते हो ना इंस्टाग्राम पे, कैसे? एनीवन कैन एक्सप्लेन 7th सेमेस्टर कि हाउ ग्राफ थ्योरी इज रिलेटेड विद द फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम? हाउ? प्रतीक, ऑनलाइन तो गुड, ऑनलाइन में आंसर आ गया। थैंक यू प्रतीक, योर आंसर इज करेक्ट। बताइए आप ऐसा कौन सा फीचर देखते हैं जो ग्राफ थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है? भाई फीचर्स आप कौन सा यूज करते हो जो फेसबुक में, जिससे आपको लगता है कि ये इंटरकनेक्टेड है लोग? आप थोड़ा सा लाइट करेक्ट है आपका, थोड़ा सा और सोचोगे तो आंसर कर लोगे। आपका आंसर सही है, एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है। हाँ बोलो, जो थोड़ा सा आपने इंटरकनेक्शन नोड्स बोला है ना, थोड़ा सा और रिफॉर्म करो। भाई फ्रेंड सजेशंस आते हैं, तो दैट इज द इंटरकनेक्शन। फ्रेंड सजेशन, म्यूचुअल फ्रेंड, दैट इज द ग्राफ। एडजेसेंट नोड, जैसे मैं और इसका फ्रेंड हूँ, लेकिन वो आपके एडजेसेंट है तो उसका भी फ्रेंड मुझे जाएगा, दैट इज द ग्राफ। जो आप फ्रेंड सर्च करते हो वो ग्राफ है। मतलब हर एक अकाउंट एज अ एक्ट एज अ नोड, और जो भी उसमें कुछ भी हो रहा है वो सब एज अ नोड। और जो पाथ क्या है, अब देखो इसमें रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश किया इसका फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा क्या है, एजेस है, और हम जो दूसरे के node। इसीलिए जब भी आप टैग करते हो ना तो सबको दिखता है जो भी आपके फ्रेंड है, दैट मीन्स एडजेसेंट नोड वी कैन फॉलो। या कपिल, दैट्स करेक्ट। देखिए ऑनलाइन आंसर सही आ रहे हैं, ऑफलाइन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन।